Last time we discussed about chapter number 10 straight line and we discussed exercise 10.3 question number 10. Today we discuss about chapter number 10 exercise 10.3 and question number 11. So question number 11 is what? Question number 11 में लिखा है prove that the lines prove that the lines through the point x1 y1 and through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c is equal to 0. Parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 and is ax1 is ax minus x1 plus b y minus y1 plus c equal to 0. Okay, ax minus x1 plus b y minus y1 equal to 0. Okay, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द लाइंस, ऐसी लाइन प्रूव करो थ्रू द पॉइंट, वो लाइन x1 y1 में से पास हो रही हो एंड पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0। और किससे पैरेलल होगी? ax plus by plus c equal to 0 के लिए पैरेलल होगी। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equal to 0। तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी ax plus by plus c equal to 0 के लिए? तो लिखेंगे पैरेलल लाइन ax plus by plus k equal to 0 is the parallel, ऐसे लिखेंगे is the parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 and passing through the point ax1 y1 या तो p of x1 y1 लिखते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया है x1 y1। तो ये लाइन में से x1 y1 जो पॉइंट पास हो रहा है सो हम लिखेंगे ax1 plus b y1 plus k equal to 0। ये लाइन के लिए ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये लाइन इसकी पैरेलल लाइन है। ओके, तो ax1 plus b y1 plus k equal to 0। So what is the value of k? So k equal to, we know that minus ax1 minus b y1। okay, k equal to you can simply minus ax1 minus b y1। तो यहाँ पर नंबर 1 दे दें। तो k की जो वैल्यू है minus ax1 minus b y1, put the value of equation ax plus by plus k equal to 0। हम लिखेंगे put the value of k is equal to what? Minus ax1 minus b y1 in equation ax plus by plus k equal to 0। ओके, इसमें हम k की वैल्यू क्या रखेंगे? minus ax1 minus b y1। ओके, so our answer is ax plus by plus k is what? minus ax1 minus b y1 equal to 0। now solution is ax plus by minus ax1 minus b y1 equal to 0। और हमें प्रूव क्या करना है? यहाँ पर लिखा है ax minus x1 plus b y minus y1। तो सबसे पहले x और x1 टर्म को अलग लिख दे, ax minus ax1 plus by minus b y1 equal to 0। now first two term में से कॉमन क्या होगा? a कॉमन। so our answer is ax minus x1 plus b common y minus y1 equal to 0। now we can say that parallel to the line ax plus by plus c equal to 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं? ax minus x1 plus by minus y1 equal to 0 हो सकता है।
सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप राइट करें। Now we discuss question number 12. Question number 12 में लिखा है two lines passing through the point 2 3. Two lines passing through the point 2 3. 2 3 में से एक लाइन पास हो रही है, intersect each other an angle of 60 degree. intersect each other an angle of 60 degree and if slope of the line 2 find the equation of other line. If the slope of the line 2 find the equation of other line का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एंगल दिया है, तो ये हाईलाइट करता हूँ, एंगल यानी कि tan थीटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है 60, यानी कि थीटा इक्वल टू 60, देयरफॉर tan थीटा यानी कि tan 60 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 60 मींस √3। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक दो लाइन है, दो लाइन में से एक लाइन पास हो रही है 2 3 पॉइंट में से और इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री इफ द स्लोप ऑफ द लाइन 2, यानी कि एक लाइन का स्लोप क्या है 2 है, यानी कि हम लिखेंगे स्लोप ऑफ m1, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 इक्वल टू कितना है 2। तो हमारे पास m2 नहीं है, तो स्लोप ऑफ अदर लाइन m2 हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, m2 सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो आंसर में से हम क्या करेंगे, हम फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, तो दूसरी लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले के स्लोप फॉर्मूला क्या है हमारे पास tan 60 के लिए, tan 60 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 डॉट m2। ओके, नाउ tan 60 इज √3 इक्वल टू m1 मींस 2 माइनस m2 एंड 1 प्लस m1 मींस 2 into m2। ओके, नाउ सॉल्यूशन इज 2 minus m2 divided by 1 plus 2m2 equal to √3। देखो ये जो मोड है वो मोड को जब हटाएंगे तो √3 की दो कंडीशन आ जाएगी। कौन सी कंडीशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम लिखेंगे 2 minus m2 1 plus 2m2 is equal to √3 और दूसरी कंडीशन लिखेंगे 2 minus m2 1 plus 2m2 equal to -2। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मिलेगा हमें m2 की वैल्यू मिलेगी, तो कैसे होगा 2 minus m2 इक्वल √3 मल्टीप्लाई 1, सो √3 प्लस √3 m2, देयरफॉर माइनस m2 माइनस √3 m2 इक्वल माइनस m2 माइनस √3 m2 इक्वल टू √3 माइनस 2। ओके, सो ये दोनों में से m2 को कॉमन निकालो, सो m2 कॉमन, सो -1 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3 इक्वल टू √3 माइनस 2, देयरफॉर m2 इक्वल टू 2 माइनस √3 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे √3 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हमें m2 मिल गया 2 माइनस √3 और √3 माइनस 1 होगा। ओके, उसी तरह माइनस √3 के लिए चेक करें, 2 माइनस m2 इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2m2 माइनस 2 √3 m2 ओके, तो
तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि 2 माइनस m2 रूट 3 मल्टीप्लाई 1 2 रूट 3 m2 2 रूट 3 m2 2 रूट 3 यहाँ पर 2 रूट 3 यहाँ पर भी 2 रूट 3। ओके, सो our answer is 2 minus 2 root 3 upon 2 root 3 minus 1, वो एक m2 की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर चेक करें कि 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा, माइनस रूट 3 उससे आएगा तो 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 m2 प्लस m, तो 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू m2, यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 माइनस 2 रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3 आ जाए। सो और m2 का आंसर क्या होगा 1 माइनस 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 रूट 3। ओके, तो m2 में हमारे पास आंसर आ गया। m2 का आंसर क्या है, दो आंसर मिले 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 माइनस 1। यहाँ पर क्या है 2 प्लस रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूट 3 माइनस 1। यस, m2 यहाँ पर क्या होगा, सॉरी m2 यहाँ पर होगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 3, या तो 1 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालूंगा तो 2 माइनस रूट 3 तो 1 माइनस 2 रूट 3 आ जाएगा। ओके, सो 1 प्लस 2 रूट 3 आएगा यहाँ पर। ओके, तो दो आंसर मिले m2 का। तो 2 माइनस रूट 3 यहाँ पर हमने क्या किया, जो टर्म था उसको चेंज किया, सो माइनस आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव। सो यहाँ पर 1 प्लस 2 रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 एक आंसर, और दूसरा आंसर मिला m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3। तो हमारे पास m2 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद हम अदर लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप कैलकुलेट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं अदर लाइन का इक्वेशन। अब देखो m2 है हमारे पास 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3, एक स्लोप मिल गया सेकंड लाइन का, और दूसरी सेकंड लाइन का स्लोप वही और करके है m2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 1 माइनस 2 रूट 3। तो आपके पास स्लोप है लेकिन पॉइंट भी होना जरूरी है। तो यहाँ पर बोला है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 x1 y1 इज इक्वल टू 2 3। सो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करें। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। तो एक स्लोप है आपके पास 2 3 एंड m2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 और 1 प्लस 2 रूट 3 के लिए हम चेक करें कि लाइन का इक्वेशन क्या है। तो आपके पास स्लोप है x1 y1 और m2 है स्लोप 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3। तो उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन करेंगे। y माइनस y1 इज 3 इक्वल टू m2, सो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 रूट 3 और x माइनस x1, x1 मींस व्हाट, तो 2। नाउ सॉल्यूशन इज y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 रूट 3 y मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 रूट 3 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3। ओके, नाउ सॉल्यूशन करें इसका कि y into 1 तो y प्लस 2 y रूट 3 माइनस 3 1 सा 3 माइनस प्लस माइनस 3 2 6 रूट 3 इक्वल टू 2x माइनस रूट 3x माइनस 2 2 सा 4 प्लस 2 रूट 3। ओके, सो सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले तो x वाले टर्म कौन कौन से, तो ये दोनों x वाले टर्म है, उसके बाद y वाले टर्म। तो x वाले टर्म में से x को अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे लिखें कि y प्लस 2y रूट 3 माइनस 3 माइनस 6 रूट 3 माइनस 2x प्लस रूट 3x प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, मैंने क्या किया कि सब जो टर्म यहाँ पर थे राइट हैंड साइड में सभी को लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज करके ले लिया। ओके, उसके बाद x वाले टर्म जो है उस
उसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो x वाले जो टर्म है उसमें से x को कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा आंसर, x कॉमन तो √3 - 2, √3 - 2। उसके बाद y वाला तो y कॉमन तो क्या होगा 1 + 2y, y कॉमन तो 1 + 2 √3, यस 1 + 2 √3। उसके बाद कांस्टेंट टर्म कौन से, तो कांस्टेंट टर्म में से आप देख सकते हो -3 पड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर 4 पड़ा है, तो -3 - 6 √3 -8 √3, तो माइनस प्लस तो 8 √3 पॉजिटिव में आ जाएगा और -3 + 4 सो 1 आ जाएगा, उस साइड जाएगा तो -1। तो क्या लिखेंगे हम, अदर देन इक्वेशन x √3 - 2 + y 1 + 2 √3 = 8 √3 - 1। तो एक इक्वेशन m2 ये रखने से आपको मिलेगा। ओके, और वही पॉइंट का यूज करने से हम m2 ये रखेंगे 2 + √3 1 - 2 √3। और दूसरा इक्वेशन कैसा आएगा हम देख लेते हैं यहाँ पर कि पासिंग टू द पॉइंट 2 3 अब पॉइंट 2 3 एंड m2 चेंज हो जाएगा, m2 क्या होगा 2 + √3 1 - 2 √3, 2 + √3 and 1 - 2 √3। Okay, so solution is y - y1 = m2 x - x1। so y - 3 m2 means 2 + √3 divided by 1 - 2 √3 x - 2। now solution is y multiply 1 - 2 √3 minus 3 1 3 minus plus 3 2 6 √3 equal to x multiply 2 + √3 minus, अब देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है, 2 + √3 के साथ है, तो 2 2 4 minus plus minus 2 √3। okay, now solution is y 1 - 2 √3 minus x 2 + √3 equal to -4 - √3 plus 3 - 6 √3। अब देखो कांस्टेंट टर्म अलग कर दिए और x और y वाले टर्म अलग कर दिए। तो सबसे पहले x वाला टर्म लिखेंगे -x 2 + √3 plus y 1 - 2 √3 equal to, यहाँ पर देख सकते हो -4 + 3 so -1 -4 + 3 -1 और यहाँ पर क्या होगा -6 √3 और √3 6 √3 और √3 इक्वल टू क्या होगा टोटल आंसर 6 √3 और √3। सभी मल्टीप्लिकेशन चेक करें फिर से y मल्टीप्लाई 1 - 2 √3 -3 1 3 -3 2 6, यहाँ पर 1 - 2 √3 है 1 - 2 √3 यस, so 1 - 2 √3 तो -3 + 6 √3 x मल्टीप्लाई 2 + √3 -2 2 4 माइनस प्लस माइनस 2 √3, यहाँ पर √3 2 √3 आएगा, यस 2 √3 देख सकते हो आप आंसर। ओके, फिर से देखो x मल्टीप्लाई 2 + √3 -2 2 4 माइनस प्लस माइनस 2 √3 सो 2 √3, उसके बाद y वाला टर्म, उसके बाद x वाला टर्म -4 यानी कि -√3 की जगह क्या हो जाएगा 2 √3। ओके, सो -8 √3 आएगा। ओके, सो माइनस अंदर भेज देंगे तो x 2 + √3 माइनस y 1 - 2 √3 और माइनस आगे जाएगा तो 1 और प्लस 8 √3। ओके, तो यहाँ पर आपका अदर लाइन का इक्वेशन है x 2 + √3 माइनस y 1 - 2 √3 1 + 8 √3। चेंजेस इतना है यहाँ पर 8 √3 माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर 1 + 8 √3। ओके, सो एग्जांपल ये जो सम है क्वेश्चन नंबर 13 वो 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में एग्जाम में आ रहा है। ओके, सो आप राइट आउट